Namaskar. Today my lecture, the subjects of international human rights and question number second. The question number second is a very important question for the examination point of view. The second question, international human rights, unit first. What is the concept of human rights? How have they been classified? यानी मानवाधिकार की अवधारणा क्या है और उसके विभिन्न प्रकार या उसका वर्गीकरण बताइए, उसके कितने भाग में बांटा गया है. व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड हाउ हैव दे हैव बीन क्लासिफाइड. ये जो क्वेश्चन है ये हमेशा कई बार इसको पूछा जा चुका है और आता है. शॉर्ट में भी कभी कभी पूछ देता है कि राइट शॉर्ट नॉट काइंड्स ऑफ ह्यूमन राइट या क्लासिफाइड ऑफ ह्यूमन राइट्स या टाइप्स ऑफ ह्यूमन राइट. दिस आंसर शेयर इंक्लूड फॉलोइंग पॉइंट्स. इस क्वेश्चन को आंसर को लिखने के लिए इतने पॉइंट्स को मैंने बांटा है, जिसमें पहला है नेचर एंड कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट. सॉरी, उसमें भी कई पॉइंट्स हैं, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन राइट, क्लास ए, फर्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, सेकंड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, थर्ड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट. क्लास बी में आपके सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट, कलेक्टिव राइट. एंड क्लास सी में नेगेटिव राइट्स, पॉजिटिव राइट एंड नेचुरल राइट. तो हम आज इसी क्वेश्चन पर जो है डिस्कस करेंगे, नेचर एंड कंसेप्ट ऑफ human right. Human beings are rational beings, thereby virtue of their being human possess certain basic and inalienable rights which are commonly known as human rights. Since these rights belong to them because of their very existence, they became operative with their birth. Human rights, being the birth rights, are therefore inherent in all the individuals irrespective of their caste, creed, religion, sex and nationality. These rights are essential for all the individuals as they are consonant with their freedom and dignity and are conducive to physical, moral, social and spiritual welfare. They are also necessary as they provide suitable conditions for the material and moral implement of the people. Because of their immense significance to human being, human rights are also sometimes referred to fundamental right, basic right, इनहेरेंट राइट, नेचुरल राइट एंड बर्थ राइट. तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से फंडामेंटल राइट्स को कई नामों से इंडिकेट किया जाता है, फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट को बेसिक राइट भी कहते हैं, फंडामेंटल राइट को बर्थ राइट भी कहते हैं, फंडामेंटल राइट को नेचुरल राइट भी कहते हैं और फंडामेंटल राइट को इनहेरेंट राइट भी कहा जाता है. तो सेम उसी तरह ह्यूमन राइट को भी देयर आर डिफरेंट नेम से, कई नामों से जाना जाता है. जैसे मानवाधिकार को बेसिक राइट भी कहते हैं, बर्थ राइट भी कहते हैं, इनहेरेंट राइट भी कहते हैं, यूनिवर्सल राइट भी कहते हैं, इसको नेचुरल राइट भी कहते हैं और फंडामेंटल राइट भी मानवाधिकार को कहा जाता है. आगे, human rights therefore are those rights which belong to an individual as a consequences of being human. They are based on elementary human needs as imperative. Some of these human needs are internal for sheer physical survival and health. Other are elemental for physics, survival and health. Thus, human rights can be perceived and enumerated. These rights are associated with the traditional concept of natural law.
यानी मानवाधिकार जो है ये प्राकृतिक विधि का परंपरागत अवधारणा है। ह्यूमन राइट बीइंग एसेंशियल फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स, यानी मानवाधिकार जो है व्यक्तिगत विकास का, बिना मानवाधिकार के व्यक्तित्व का किसी भी मनुष्य का व्यक्तित्व और बौद्धिक विकास नहीं हो सकता। अगर हम मानवाधिकार की परिभाषा को देखें तो सामान्य तौर पर मानवाधिकार के बारे में जो कहा जाता है कि मानवाधिकार के अभाव में किसी भी मनुष्य के शारीरिक और बौद्धिक विकास असंभव है। Human rights being essential for all round development of the personality of the individuals in the society, be necessarily protected and be made available to all the individuals, यानी ये सभी व्यक्तियों के लिए आवश्यक है। The need for the protection has arisen because of inevitable increase in the control over means action by the government, which by no means can be regarded as desirable. The consequences on the part of the human being as to their rights has also necessitated the protection by the states. It has been realized that the function of all the laws, whether they are the rule of municipal law or that of international law, should be to protect them in the interest of the humanity। देखिए, चाहे वो नेशनल लॉ हो, जिसको हम लोग म्यूनसिपल लॉ भी कहते हैं, इसको स्टेट लॉ भी कहा जाता है, चाहे म्यूनसिपल लॉ हो, चाहे स्टेट लॉ हो, या फिर नेशनल लॉ हो, या फिर इंटरनेशनल लॉ हो, सभी का ऑब्जेक्ट क्या है? सभी का ऑब्जेक्ट है प्रोटेक्ट देम इन द इंटरेस्ट ऑफ द ह्यूमैनिटी, यानी मानव हित को संरक्षण प्रदान करना है, मानव हितों को संरक्षित करना है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है, उसको जो है उनके अधिकारों को प्रोटेक्ट करना है। ये तो हो गया द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट, मानवाधिकारों की अवधारणा। अब क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन राइट, मानवाधिकारों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन राइट, ऑल ह्यूमन राइट्स आर ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस, यानी सभी मानवाधिकारों का एक समान इम्पॉर्टेंट है। एट द इंटरनेशनल लेवल दे आर क्लासिफाइड एज फॉलो, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो सभी मानवाधिकारों का इक्वल इम्पोर्टेंस है, समान महत्व है। और निम्नलिखित मानवाधिकारों का वर्गीकरण है, जिसमें पहला है फर्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। फर्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। First generation of human rights are those which were demanded at the very beginning of human civilization or in the process of development. They were developed in the entitled stage, such as right to life, etc. यानी जो फर्स्ट जनरेशन, जो प्रथम पीढ़ी के अधिकार हैं, वो मानवाधिकारों के प्रथम उसको चरम कहा जाता है, जिसमें जैसे आपके शारीरिक यानी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से रिलेटेड जो भी राइट्स हैं। द फर्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट आर दोज विच वेर डिमांडेड एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन और इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। दे वेर डेवलप्ड इन द इंटाइटल स्टेज सच एज राइट टू लाइफ etc. सेकेंड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, यानी जिसको हम लोग कहते हैं द्वितीय पीढ़ी के अधिकार। दिस राइट्स वेर डेवलप्ड टू strengthen the first generation of human right
The concept of public welfare was behind the emergence of this right, such as rights to education, employment, health, etc. Both the right are complementary to each other. यानी जो सेकेंड जनरेशन राइट है, द्वितीय पीढ़ी का अधिकार है, उसमें शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार, शारीरिक सुरक्षा का अधिकार, हेल्थ राइट्स, etc. एक्सेट्रा इत्यादि आते हैं. थर्ड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, तृतीय पीढ़ी के अधिकार. These rights were embedded in the end of 20th century. These rights are still in the processes of development. Till that, 6 rights have been considered to be within it. यानी जो ये थर्ड जनरेशन राइट है, ये 20th सेंचुरीज में इसको एडॉप्ट किया गया और मिनिमम ये जो 6 राइट्स प्रोवाइड किए गए, जिसमें पहला ए राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, आत्मनिर्णय का अधिकार. दूसरा है राइट टू डेवलपमेंट, विकास का अधिकार. तीसरा है राइट टू पीस, शांति का अधिकार. चौथा है राइट टू इन्वायरमेंट, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार. पांचवा है राइट टू ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट, यानी मानव सहायता पाने का अधिकार. और 6 है राइट टू पार्टिसिपेट इन एंड बेनिफिट फ्रॉम कॉमन हेरिटेज ऑफ द मैनकाइंड. ये 6 राइट्स हैं जो कि प्रोवाइड किए गए 20th सेंचुरी में BIA, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट. These are basically the fourth generation of human rights which are related to the protection of life and personal liberty, such as right to life, privacy, protection from torture, right to religions, freedom of movement, etc. Political rights are those rights which permit any individual to participate directly or indirectly in the formation of their government, such as right to vote, to hold public office, etc. And second, economic, social and cultural rights. These rights are related to the basic need of life without which human existence could be in dangers, such as adequate food, cloth, house, health, education, work, etc. These rights are basically the second generation of human rights. And third, collective right. Collective rights. These rights are basically the third generation of human rights. For its protection, collective efforts are necessary, such as rights to peace, environment, etc. See first, negative right. Civil and political rights are also called negative right. यानी civil and political rights are also called negative right. These are negative in the sense that it does not require affirmative action of state. These are similar to the fundamental right of Indian Constitution. Second, positive right. Economic, social and cultural rights are also called positive rights. It is positive in this sense that for its realization, states' affirmative action is required. These rights are similar to the directive principle of state policy of Indian Constitution. यानी जो ये पॉजिटिव राइट है, अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जो नेगेटिव राइट है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 इसको आप समझ लीजिए, और जो पॉजिटिव राइट है इसको आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 आई मीन डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी समझ लीजिए. थर्ड, natural right. These are those collective rights those nature is neither absolutely negative nor positive. These are natural
in nature. For the protection of these rights, state and individuals both has to do effort. These rights are still in the process of development. All these rights are supplementary to each other. The extent of one group of rights is not possible without the other. देखिए, अगर हम इस क्वेश्चंस को पूरा अगर समराइज करते हैं कि क्लासिफाइड ऑफ ह्यूमन राइट, तो कुछ चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा कि अगर मानवाधिकारों का वर्गीकरण करें तो इसको हम तीन पार्ट में, ज़्यादातर तीन पार्ट में इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं, तीन पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं. पहला, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, जिसको फर्स्ट जनरेशन राइट भी कहा जाता है. दूसरा है इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, इसको हम सेकंड जनरेशन राइट भी कहते हैं. फर्स्ट जनरेशन राइट को नेगेटिव राइट भी कहा जाता है और इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट को पॉजिटिव राइट भी कहते हैं. तीसरा है कलेक्टिव राइट, जिसको हम लोग सामूहिक अधिकार भी कहते हैं, जिसको हम लोग थर्ड जनरेशन राइट भी कहा जाता है. अगर ये पूरा आप मान लीजिए कंफ्यूज हो जाते हैं तो तीन राइट्स को याद रखिएगा, तीन कैटेगरी को याद करिएगा. एक सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, जिसको हम लोग नेगेटिव राइट भी कहते हैं, जिसको हम लोग फर्स्ट जनरेशन राइट भी कहते हैं. दूसरा है इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट, जिसको हम लोग पॉजिटिव राइट भी कहते हैं, जिसको हम लोग सेकंड जनरेशन राइट भी कहते हैं. और तीसरा है कलेक्टिव राइट, जिसको हम लोग थर्ड जनरेशन राइट भी कहते हैं. तो इस क्वेश्चन को आप लोग एनालाइज कर लीजिएगा और इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको अपलोड कर लेंगे. एक बार इसको आप लोग देख लीजिएगा. इसमें देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछा जाता है. कभी कभी शॉर्ट में आपका फर्स्ट जनरेशन राइट पूछता है, कभी आपको सेकंड जनरेशन राइट पूछ देता है, या फिर शॉर्ट में आपसे कलेक्टिव राइट भी पूछ देगा, या फिर सिविल एंड पॉलिटिकल राइट को शॉर्ट में पूछेगा, या फिर इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स को भी पूछेगा. और कभी कभी इसी क्वेश्चन को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से समराइज करके पूछता है कि इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट एंड सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, डिस्कस द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स एंड इकोनॉमिक एंड कल्चरल राइट इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आप बताइए. तो आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का दो पार्ट को आप लोग तैयार रखिएगा. एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट थर्ड, जो कि फंडामेंटल राइट, और एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट फोर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, स्टेट पॉलिसी. सिविल एंड पॉलिटिकल राइट एज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट थर्ड एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी इज इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट एज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट फोर, आई मीन डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी. तो फिलहाल आज इतना ही. थैंक यू.